A very pleasant morning to all the dear students of class 7. As we were doing our chapter number 4, that is simple equations, and we have discussed that what is equation. After that we have discussed about the solution of equation and solving any given equation. Okay, and we have found that when a value for the variable just satisfies the equation, it means that makes the left hand side LHS of an equation equals to the RHS, that is right hand side of the equation, then we say that the value of variable is the solution to the equation, or it satisfies the equation. And doing that, you have done the from making equations from a given solution, and have done the exercise 4.3 previous video. In the previous video I have discussed that. Okay, now moving further, with this video we will just finish up with our chapter number 4, simple equations. This is the last video for this, and here today we are going to discuss applications of simple equations. So applications of simple equations, as I have discussed earlier also, that when you have a given condition, when you have a condition or situation, then you can formulate the equation from that. Like when I started the chapter, I have taken the example of the taxi fare. Okay, so that was a condition and you have made the equation and then you have solved that equation. So that is the basically your application of the equation, application of simple equations in daily life. So here we will just see this in this section, in the last section of this chapter. We will just see the questions of exercise 4.4. we will do that and you will understand the concept by this. So you will complete this work, watch the video. Some of the questions I am solving, some of them you will do yourself, others I will just formulate equation for you, and because you know that how to solve the equation by step method in transposing method, then you will complete that by yourself. Okay, I will just formulate the equation. Now moving further with this, you can see the exercise 4.4 here. Okay, the question number 1 says set up equations and solve them. Set up equations, पहले आप equations को set up करेंगे, मीन्स बनाएंगे, and solve them to find the unknown numbers in the following cases. तो ये आपके पास cases हैं. आप unknown number पहले एक equation form करेंगे, उसमें आपका obviously चीज़ है, आप एक unknown होगा जब आप equation को form करेंगे, and then you will find the value of that unknown. Okay, so like you can see the first part says add 4 to 8 times a number, you get 60. तो इस स्टेटमेंट से, क्योंकि ये आप पहले कर चुके हैं, ठीक है ना, प्रीवियस एक्सरसाइज में 4.2 4.1 में आपने स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाई थी, और ये स्टेटमेंट क्या कह रही है, ऐड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर. तो आप इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, लाइक इफ आई टेक फर्स्ट पार्ट फॉर यू, you will be doing exercise 4.4. in question number 1 you will write the question. Okay, you will write the complete question, that setup equation. Okay, so a part you will write complete a part, add 4 to 8 times. So equation क्या होगी, then you will write, after writing the question you will write equation is no, first you have to सबसे पहले आपका जो अननोन होगा, आपको किसी भी स्टेटमेंट में ये पहचानना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका अननोन बेसिकली नंबर है क्या, या अननोन क्या है, आपको किसको वेरिएबल लेट करना है. तो आप, क्योंकि आपका जो नंबर है 8 टाइम्स अ नंबर इज हेयर अननोन नंबर है ना, सो लेट द नंबर, इसी वाले नंबर को हम लेट कर रहे हैं, लेट द नंबर बी एक्स. तो आप वेरिएबल उसको लेट करेंगे, जिस भी चीज़ को आप फाइंड करने वाले हैं उसको आप बताएंगे पहले ज़रूर कि हमने किसको एक्स लेट किया है, क्या हमारा यहाँ पर अननोन है. लेट द नंबर बी एक्स, देन इक्वेशन क्या बनेगी, ऐड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर. सो इक्वेशन इज 8 टाइम्स द नंबर, 8 टाइम्स दिस एक्स, 4 ऐड किया, ठीक है. दे आर सेइंग यू गेट 60. इट मीन्स ये अगर मैं करूँ देन आई गेट 60, यू गेट 60 मीन्स दिस इज इक्वल्स टू 60. ठीक है, दिस इज द इक्वेशन. सो अब मैं इक्वेशन मेरे पास है, तो सिंपल मैं ट्रांसपोजिंग मेथड यूज़ करूँगी. इट इम्प्लाइज 8x इज इक्वल्स टू 60. 4 यहाँ पर ऐड में है, इक्वल्स टू के उधर जाकर सब्ट्रैक्शन में चला गया. इट इम्प्लाइज 8x इज इक्वल्स टू 56. ओके,
एक्स को क्योंकि मुझे फ्री करना है ना, ट्रांसपोजिंग मेथड बहुत अच्छे से समझाया था, अगर उसमें फिर भी डाउट है तो प्रीवियस वीडियो को आप देखेंगे, ठीक है, दोबारा से देखेंगे प्लेलिस्ट में जाकर ऑन द चैनल इफ़ यू हैव सब्सक्राइब द चैनल. So here x is in the 8 is in the multiplication of x equals to के उधर जाकर आपका डिवीजन में चला जाएगा, ठीक है. 8 7 से 56, x is equals to 7. So the number is 7. ओके, सिंपल ऐसे ही करना है आपको. एक वेरिएबल लेट करना है, फिर इक्वेशन फॉर्म करनी है, और उसके बाद आपको अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है. तो सभी में ऐसे ही करना है. आप खुद ट्राई करेंगे. आई एम टेकिंग f पार्ट फॉर यू, one more part. Okay, so in the f part it is saying Ibn Hal thinks of a number. वो एक नंबर के बारे में सोचती है. if she adds 19 to it, फिर वो उस नंबर में 19 ऐड कर देती है, ठीक है. पहले नंबर सोचा, फिर नंबर में 19 ऐड किया, एंड डिवाइड्स द सम. अब ये जो सम था ना, उस पूरे सम को डिवाइड करती है बाय 5. शी विल गेट 8, ठीक है. तो मुझे इक्वेशन फॉर्मुलेट करनी है और फिर अननोन की वैल्यू भी फाइंड करनी है. तो मेरा यहाँ पर भी सेम यही होगा, दैट द लेट द नंबर Ibn Hal थिंग्स, जो वो सोचती है, बी एक्स. आपने एक्स लेट कर लिया वो नंबर, ठीक है, जो उसने सोचा. देन she adds 19 to it, that is x plus 19 हो गया आपका, ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट. स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या किया है उसने, उसने इस सम को, ये पूरा सम था ना, x प्लस 19 पूरा सम है, इसको पूरा डिवाइड किया है 5 से. ये ध्यान रखना है, x और 19 दोनों के डिवाइड में 5 है, ठीक है. x प्लस 19 इज डिवाइडेड बाय 5, डिवाइड्स द सम बाय 5, शी विल गेट 8. इसका आंसर उसको 8 मिल रहा है. अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. सो हेयर यू कैन सी दैट यहाँ पर आपका x प्लस 19 के साथ डिवीजन में 5 है. ओके, अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेथड के बारे में सोचते तो आपको ये 5 हटाना था, तो आप क्या करते, दोनों साइड 5 की मल्टीप्लिकेशन करते. यहाँ पर 5 कैंसिल हो जाता और यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाता. ट्रांसपोजिंग में आप सीधा क्या करेंगे, अब ये डिवीजन में है तो उधर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में. तो x प्लस 19 के इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 5, ऐसे हो गया आपका. देन यू गेट x प्लस 19 इज इक्वल्स टू 8 5 40, एंड देन यू गेट x इज इक्वल्स टू, अब आपको x को फ्री करना है ऑब्वियसली, ठीक है, इंडिपेंडेंट करना है मुझे, क्योंकि अननोन की वैल्यू निकालनी है. इधर प्लस में है 19, इक्वल्स टू के उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 40 माइनस 19. ओके, सो x इज इक्वल्स टू योर 21, ठीक. सो द नंबर थॉट बाय इब्न हाल, और the number is 21. So likewise you can formulate the equation for other statements and will find the solution. So this is about question number 1. Okay, and you will pay attention class 7, watch the video carefully. आपको ये एग्ज़ाम में भी ध्यान देना है कि आप यहाँ पर बताएंगे कि आपने वेरिएबल क्या लेट किया है, प्रॉपरली सॉल्यूशन को करेंगे जैसे मैं करती हूँ. टीचर शुड नॉट गेट अ चांस टू कट योर मार्क्स. ओके, so now moving toward question number 2. Question number 2 says solve the following. Question number 2 says solve the following, and in that also they have given some statements. Okay, you will formulate the equation and then you will just solve the equation. Okay, so you can see in the question number 2, the first part is the teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. ठीक है, टीचर ने बताया कि लोएस्ट मार्क्स का ट्वाइस करो, उसमें प्लस 7 करो, वही आपके हाईएस्ट मार्क्स हैं क्लास में जो मिले हैं. ठीक है, द हाईएस्ट स्कोर इज 87. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज हाईएस्ट स्कोर आपका है क्या, 87. व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर. तो सिंपल है, मैं कैसे करूंगी इसको, लोएस्ट स्कोर को आप लेट लोएस्ट स्कोर करिए, क्योंकि आपको जो फाइंड करना है आप उसी को वेरिएबल लेट करेंगे ना, लेट लोएस्ट स्कोर इज इक्वल्स टू एक्स करेंगे. मैं यहाँ पर रफली आपको बता रही हूँ. ठीक है, उसके बाद
ट्वाइस द लोएस्ट स्कोर प्लस 7, 2x प्लस 7 आपका कितना है हाईएस्ट स्कोर, एंड हाईएस्ट स्कोर इज 87। लेकिन आप लिखेंगे ऐसे नहीं कि 2 लाइन में आपने ये कर दिया, अगर 3 मार्क का क्वेश्चन हुआ और आपने ये 2 लाइन लिख के ऐसे सॉल्व कर दिया तो आपके मार्क्स कट सकते हैं क्लास 7। इसलिए आप लिखेंगे वैसे ही जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में अभी एक्सप्लेन किया है, ठीक है, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया है। नेक्स्ट इज इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल, द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री, ओके, what are the base angles of the triangle? And they are saying remember that the sum of 3 angles of a triangle is 180 degrees. So we can see the B part for question number 2. Question number 2 B part, ठीक है, उन्होंने क्या बोला है ना, I am drawing a rough figure of an isosceles triangle. So this is an isosceles triangle, अगर आप इसको कंसिडर करें, then this is your ABC. isosceles triangle है तो आपकी 2 sides equal है, ठीक है, और बेस एंगल्स आपको पता है कि 2 साइड्स इक्वल होती हैं और उसके 2 एंगल्स अपोजिट टू दीज 2 साइड्स आर आल्सो इक्वल, मीन्स एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। एंड क्लास में आपको बता दूं B एंड C दीज आर बेसिकली एट द बेस BC, देयरफॉर दीज आर बेस एंगल्स, ओके ना। एंड दिस इज योर एंगल A इज योर वर्टेक्स एंगल इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो जो आपके इक्वल एंगल्स होते हैं और बेस पर होते हैं दैट आर बेस एंगल्स, दिस इज योर वर्टेक्स एंगल। और आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम मींस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि आपका जो वर्टेक्स एंगल है वो 40 डिग्री है, दे हैव सेड दैट दिस वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री एंड दे आर सेइंग दैट फाइंड द बेस एंगल्स, दिस B एंड C, बेस एंगल्स फाइंड करने हैं मुझे। तो मैं क्या करूँगी, जो मुझे पता है कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C है, ओके, बिकॉज क्यों है एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, मैं यहाँ पर रीजनिंग लिख देती हूँ। इन ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे बाद में भी। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C बिकॉज एंगल्स अपोजिट जो होते हैं ना, अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसमें 2 साइड्स अपोजिट, 2 साइड्स इक्वल होंगी ही, उनके जो इस इक्वल साइड के अपोजिट ये वाला एंगल है, इस इक्वल साइड के अपोजिट ये वाला एंगल है। एंगल्स बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। तो आपका ये रीजन यहाँ पर हो गई। नाउ लेट एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C है ही, तो दोनों को ही मैं x ही कंसीडर करूंगी क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अगर मैं B को x मानूंगी तो C भी अपने आप x ही है। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू x, देयरफॉर व्हाट वी हैव एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड ब्रैकेट में आप रीजन लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी यू नो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल सेज that the sum of 3 angles of a triangle is 180 degree, okay, remember that class 7. So you will here put the values 40 degree plus x is equals to 180 degree and आपकी equation form हो गई 40 degree। अब x और x, 1x plus add 1x, this will be your 2x, ठीक है। वेरिएबल की जब एडिशन होती है तो आपका x प्लस x जो है 1x है, ऐड होगा 1x के साथ तो 2x बनेगा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इट इम्प्लाइज 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 40 इधर चला जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, एंड 2x इज इक्वल्स टू 140 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज 140 डिग्री। इट इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू, अब 2 कहाँ पर चले जाना है, डिनोमिनेटर में, डिवाइड में, इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। So therefore base angles, angle B is equals to angle C is equals to 70 degree. This is the proper solution for this question, okay, and the concepts that I had told you in this part, please remember them, okay. Now question number 2 का C part में वो कह रहे हैं Sachin scored twice as much सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मच एज मैनी रन्स एज राहुल। तो राहुल ने जितने रन स्कोर किए हैं सचिन ने ट्वाइस किए हैं, ठीक है। टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी।
डबल सेंचुरी मीन्स 200 है ना, उससे 2 शॉर्ट उनके टोटल रन है। इट मीन्स उनके रन कितने हैं, 2 शॉर्ट कहने का मतलब है 2 लेस, इसका मतलब उनके रन कितने हैं 198। तो अगर आप एंड दे आर आस्किंग हाउ मेनी रन्स डिड ईच वन स्कोर, तो ऑब्वियसली चीज़ है अगर आप राहुल का x मानेंगे तो फिर सचिन के कितने स्कोर होगा, सचिन ने क्योंकि स्कोर किया है ट्वाइस एज मैनी एज राहुल, इट मीन्स 2x होगा। ठीक है, राहुल का x कंसिडर करेंगे स्कोर, फिर सचिन का स्कोर लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2 runs short of a double century is equals to 200 minus 2, that is 198. According to the question, their runs together, their runs, it means कि 2x plus x is equals to आपका कितना है 198, ये आपकी इक्वेशन बनेगी। और 2x में एक x ऐड होगा तो ये 3x is equals to 198, और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। सो दिस इज रफली आई एम टेलिंग, ठीक है। लेकिन आप जैसे मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट जैसे सॉल्व किया है डिटेल में, वैसे ही कम्प्लीटली सोल्यूशन सभी का होना चाहिए क्लास 7। take this very important from the exam point of view, otherwise you will lose your marks, okay, and then you will say that मैम आपने बताया नहीं था। Then question number 3 says solve the following. Again you are having statements and you have to convert them into the equation and then you have to solve. Irfan says that he has 7 marbles more than 5 times the marbles Parmit has, ठीक है। तो ये आप इसकी इक्वेशन आपने पहले भी बनाई थी, पहले इसी चैप्टर में इन द प्रीवियस एक्सरसाइज यू हैव मेड द इक्वेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। इफ परमित हैज़ x मार्बल्स, अगर आपने परमित के x मार्बल्स ले लिए, ठीक है, अगर आपने परमित के x मार्बल्स कंसिडर कर लिए, आप पूरा स्टेटमेंट्स लिखेंगे, ठीक है। देन इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमित हैज़। तो इरफान के कितने हो जाएंगे ना, इरफान के हो जाएंगे 5 टाइम परमित से 7 ज़्यादा, इट मीन्स 5x + 7, इतने इरफान के पास हो गए। और इरफान के पास हैं कितने 37 मार्बल्स, इट मीन्स 5x + 7 इज इक्वल्स टू 37। ये आपकी इक्वेशन बनेगी एंड देन यू विल सॉल्व, बट यू विल राइट कंप्लीट सोल्यूशन, ओके। टेक वेरी मच केयर ऑफ दिस। देन question number 3 second part says Lakshmi's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. What is Lakshmi's age? तो बहुत ही सिंपल है इसकी भी स्टेटमेंट आपकी। अगर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन बी पार्ट सेकेंड पार्ट आपके लिए सॉल्व करूं, देन इट इज सेइंग दैट लक्ष्मी के जो फादर हैं वो 49 ईयर ओल्ड हैं। लक्ष्मी के फादर की एज आपको पता है कि वो 49 ईयर ओल्ड हैं, और स्टेटमेंट ये है ही इज़ 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, ठीक है। तो लेट द लक्ष्मीज एज बी x years, एंड लक्ष्मीज फादर इज 49 years old, गिवन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन also Lakshmi's father is 4 year older than 3 times लक्ष्मीज एज, ठीक है ना, ये है। तो इट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज में 4 ईयर में ऐड करूं तो ये उसके फादर की एज है विच इज इक्वल्स टू है 49, ठीक है। उसके बाद आप इस इक्वेशन को अपने आप कंप्लीटली सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। लाइकवाइज इन द थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में इट सेज पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन अ विलेज गार्डन, ठीक है। सुंदरग्राम एक विलेज है, वहाँ पर विलेज गार्डन में पीपल ने सुंदरग्राम के पीपल ने वहाँ पर प्लांट किए ट्रीज। सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज, तो कुछ ट्रीज थे फ्रूट ट्रीज और फोकस इज ऑन दिस। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज
कुछ ट्रीज कैसे थे, नॉन फ्रूट, ठीक है, कुछ फ्रूट वाले ट्रीज थे, कुछ नॉन फ्रूट ट्रीज थे. Then they are saying the number of non-fruit trees were 2 more than 3 times the number of fruit trees. ठीक है, यहीं से हमारी स्टेटमेंट बनने वाली है. तो नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 more than, 2 ज़्यादा, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज. 3 टाइम्स किसके, फ्रूट ट्रीज के नंबर के. तो हम क्या करेंगे, फ्रूट ट्रीज को एक्स लेट करेंगे, ठीक है, नॉन फ्रूट को नहीं करेंगे. नॉन फ्रूट तो इस वाली कंडीशन से निकलेंगे. तो किसी भी स्टेटमेंट में, किसी भी क्वेश्चन में हमें ये आइडेंटिफाई करना भी ज़रूरी हो जाता है, इसलिए हमें उसको इंग्लिश को हिंदी में इंटरप्रिटेशन बहुत ही अच्छे से करना है. क्लास 7, what was the number of fruit trees planted if the number of non fruit trees planted was 77. उन्होंने non fruit trees की दी है वैल्यू 77, ठीक है. so we will let, what you will do, let the fruit trees, let the number of fruit trees be x. आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, x y z कुछ भी, ठीक है ना. तो fruit trees be x, then non fruit trees will be, non fruit trees कितने होंगे क्वेश्चन के हिसाब से, they are saying number of non fruit trees were 2 more than 3 times the number of fruit trees. It means 3x plus 2, 2 more than 3 times of number of fruit trees. Okay, so and also the number of non fruit trees आपको given है is equals to 77. It implies 3x plus 2 is equals to 77. Again 3x plus 2, मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, ट्रांसपोजिंग में यूज़ करूँगी, मुझे x को फ्री करना है, ठीक है. ये सब चीज़ें आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में समझा चुकी हूँ अच्छे तरीके से. अगर फिर भी डाउट हो तो उस वीडियो को प्लीज़ देखिएगा. प्लस 2 इधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो गया, 3x इज इक्वल्स टू 75 हो गया, देन x से 3 जो है वो डिवीज़न में चला जाएगा, एंड दिस इज योर 25. सो द fruit trees were 25 in number, or you can say the number of fruit trees were 25. Okay, so this is all about this period, this lectures video. Okay, you will complete your exercise 4.4 and you will strictly do the questions as I have told you, explaining the statements and making word problems, because these will be, the questions will be around 2 or 3 marks from this. Okay, so you will explain that and complete your work. And the question number 4, which is a riddle, I'm giving you time for it. Just solve it and have the answer, and we will discuss that in WhatsApp group. Okay, I will discuss this riddle answer in WhatsApp group. So class 7, complete your work, and just this is all for this video. Stay happy and stay safe at home. Thank you, class.